کہ پنجاب میں الیکشن 30 اپریل کی بجائے 14 مئی کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ حکومت کو 10 اپریل تک الیکشن کے لیے فنڈز مہیا کرنے کا حکم جاری۔ کاغذات نامزدگی 10 اپریل تک جمع کرائے جائیں۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 19 اپریل تک جاری کرنے کا حکم بھی جاری۔ سپریم کورٹ نے پنجاب کا الیکشن شیڈول کچھ ترامیم کے ساتھ بحال کر دیا ہے۔ پنجاب 30 اپریل کے بجائے اب 14 مئی کو ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ حکومت کو 10 اپریل تک الیکشن کے لیے فنڈز مہیا کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ کاغذات نامزدگی 10 اپریل تک جمع کرائے جائیں۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 19 اپریل تک جاری کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے پنجاب کا الیکشن شیڈول کچھ ترامیم کے ساتھ بحال کر دیا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ انتخابات کو 90 روز سے آگے لے کر جائے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق، اس فیصلے کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 3 رکنی فل بینچ نے متفقہ طور پر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کے اس حکم نامے کو کالعدم قرار دے دیا جس کے تحت شیڈول واپس لے کر الیکشن 8 اکتوبر کو کروانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کا پرانا شیڈول بحال کر دیا اور اس کے ساتھ کچھ ترامیم بھی کی۔ یہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اب پنجاب میں الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، اس سے قبل 30 اپریل کی تاریخ دی گئی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں وہ الیکشن کمیشن سے الیکشن کے معاملے پر مکمل طور پر ان کی معاونت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت 20 ارب روپے کے فنڈ الیکشن کمیشن کو فراہم کرے۔ یہ بھی سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت الیکشن 90 روز سے زائد تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں شیڈول سے متعلق کہا کہ امیدواروں کی حتمی فہرست 19 اپریل تک جاری کر دی جائے اور 14 مئی کو اس حوالے سے الیکشن کروایا جائے۔ اس وقت یہ بھی بتائے گا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس فیصلے کے بعد کوئی رد عمل سامنے آیا؟ اس حوالے سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ان کا دل ان کو افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اس معاملے پر اگر فل کورٹ بنتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر اور مشتمل بینچ نے یہ فیصلہ سنایا تو وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ ہم نے متعدد بار استدعا کی کہ یہ ایک آئینی اور بڑا مسئلہ ہے اور اس معاملے پر کنسنسس ہونا ضروری ہے اور اسی لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے، لیکن ان کی اس استدعا کو رد کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ بہرحال یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس پر ان کو افسوس ضرور ہے، البتہ اس فیصلے کے حوالے سے جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ کچھ ہی دیر بعد ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ محمد اشفاق۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کی فتح ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ آئین اور جمہوریت کو بچا لیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا نام تاریخ میں رقم کر لیا۔ آج سپریم کورٹ نے نظریہ ضروریت کو دفن کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بتائے گا صدر تحریک انصاف کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، تحریک انصاف کے مزید صدر چیف پرویز نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ آئین پاکستان کی فتح ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ آئین اور جمہوریت کو بچا لیا ہے۔ انہوں نے اپنا نام تاریخ میں رقم کر لیا ہے اور آج سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے۔ چیف ویلے کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس نے آئین کے محافظ ہونے کا حق ادا کر دیا اور اس فیصلے سے پوری دنیا میں ہماری عدلیہ کا وقار بلند ہوا ہے۔ آج پاکستان کے اندر ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور حکومت نے چیف جسٹس کے خلاف کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو قوم اس کا منہ توڑ جواب دے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ سابق وزیر اعظم کے وکیل نے بتایا کہ عمران خان شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عدالت کی مہلت اور عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کے پیش ہونے پر ان کی عبوری ضمانت میں 13 اپریل تک توسیع کر دی۔
इससे कबल इमरान खान ने एक पेशी के लिए इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर की, जिसे इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की जज अभर गुल खान ने मुस्तरद कर दिया और इमरान खान को 11 बजे तक पेश होने की मोहलत दी। अदालत ने इमरान खान के वकील को बावर कराया कि अगर इमरान खान पेश हो गए तो ठीक है, वरना कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। खातून जज ने रिमार्क्स दिए कि जो अदालत में आएगा उसे रिलीफ मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हो गए हैं। खान साहब को इन पर्सन यहाँ पेश होने की हिदायत दी गई, जिसके नतीजे में वो 11 बजे यहाँ पर पेश हुए और वो ड्यूटी जज मैडम अबर गुल के पास पेश हुए, जहाँ पर आज हमने शामिल तफ्तीश भी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई है। JIT जो है यहाँ पर मौजूद थी और JIT के रूबरू तमाम एविडेंस जो है वो डिस्कस भी हुआ और स्टेटमेंट्स भी JIT को दी गई हैं। जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं वो भी दी गई हैं और इसमें अब ज़मानत में तोसी जो है 13 तारीख को है। दूसरी जानिब इसी अदालत ने हमाद अजहर और फवाद चौधरी की पेशी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दोनों PTI रहनुमा अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर अदालत पेश न हुए। अदालत ने मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर निपटा दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने केस मजीद समाअत के लिए जस्टिस साजिद महमूद सेठी को भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर केस दूसरे बेंच मुंतकली के लिए फाइल चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त शहरी मोहम्मद जुनैद ने एडवोकेट अफाक अहमद की वसातत से दायर की, जिसमें इमरान खान और चीफ इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने केस मजीद समाअत के लिए जस्टिस साजिद महमूद सेठी को भिजवा दिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को NA 95 मियांवाली से नाअहल करार दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर 2022 को इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया। वकील ने नुक्ता उठाया कि तोशाखाना के हकायक छुपाने पर इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को इमरान खान को नाअहल करार दिया। इससे कबल नवाज शरीफ को भी अदालत नाअहल कर चुकी है, जिसके बाद नवाज शरीफ पार्टी सदर नहीं रहे। नाअहली के बाद कोई पार्टी हेड नहीं रह सकता, लिहाजा अदालत इमरान खान को चेयरमैन तहरीके इंसाफ के ओहदे से हटाने का हुक्म दे। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर केस दूसरे बेंच मुंतकली के लिए फाइल चीफ जस्टिस को वापस भिजवा दी। डॉलर की कदर में 2 रुपये 25 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक डॉलर रेट पहली मरतबा 287 रुपये से जायद की हद पर बंद। इंटरबैंक डॉलर रेट 287 रुपये 29 पैसे रहा। ओपन मार्केट में डॉलर 290 रुपये से जायद तक फरोख्त हो रहा। मजीद जानेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। तेजी का रुझान देखा जा रहा है और 2 मार्च को पहली मरतबा डॉलर की शरह तबादला 285 रुपये की हद क्रॉस कर गई थी और ताहम गुज़श्ता रोज भी 285 रुपये 4 पैसे पर डॉलर बंद हुआ और आज दिन भर डॉलर की तलब में इजाफा देखा जाता रहा, जिसकी वजह से मार्केट ज़राए के मुताबिक अदालत में चलते हुए इलेक्शन शेड्यूल केस है, जिसकी वजह से एक सियासी कशीदगी और सियासी गैर यकीनी सूरत की वजह से लोग डॉलर की खरीदारी पर तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त आज जब डॉलर रेट बंद हुआ तो 2 रुपये 25 पैसे उसमें इजाफा देखा गया, जिसके बाद पहली मरतबा 287 रुपये 29 पैसे पर डॉलर रेट बंद हुआ। जबकि ओपन मार्केट में डॉलर गायब होना शुरू हो चुका है और ज़्यादातर मार्केट में डॉलर का लेन देन करने से गुरेज किया जा रहा है। ताहम जहां पर फरोख्त हुआ वहाँ 290 से 291 रुपये तक डॉलर फरोख्त किया गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो सियासी और माशी सूरत हाल है वो यकीनन मार्केट पर असरअंदाज हो रही है और ख़ास तौर पर IMF की डील, जिसके लिए 10 अप्रैल से दोबारा मुज़ाकरा शुरू होने, उनके हवाले से भी एक जाहिद, एक तरफ IMF से डील, दूसरी जानिब सियासी कशीदगी, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि डॉलर की स्मगलिंग भी हो रही है। इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? में गैर यकीनी सूरत पैदा होती है तो उसमें ना सिर्फ डॉलर स्मगल करने वाले बल्कि डॉलर होल्ड करने वाले भी सरगर्म हो जाते हैं और सट्टेबाज माफिया जो है वो अपना खेल शुरू करता है। और इस वक्त भी यही देखा जा रहा है कि गुज़श्ता चंद रोज से डॉलर की कदर एक जगह पर ठहरी हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही सियासी कशीदगी में इजाफा होता गया, इसके साथ साथ डॉलर के रेट में भी इजाफा हो रहा है और हुकूमत की जानब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो नाकाफी इस सिलसिले में साबित हो रहे हैं। स्टेट बैंक की जानब से बाद एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में आपका बहुत शुक्रिया जाहिद। शहर में मरदमशुमारी बर वक्त मुकम्मल ना हो सकी। मरदमशुमारी मुहिम 1 मार्च से 1 अप्रैल तक मुकम्मल करने का टारगेट दिया गया। मरदमशुमारी की डेडलाइन गुज़रते 4 रोज़ बीत के लाहौर में अब तक सिर्फ 82% मरदमशुमारी का हदफ मुकम्मल हो सका। मरदमशुमारी के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि
मरदम शुमारी का अब तक सिर्फ 82% हदफ मुकम्मल हो चुका है, जबकि डेडलाइन जो है वो 1 अप्रैल तक दी गई थी, लेकिन अभी तक डेडलाइन गुजरे 4 रोज़ बीत गए हैं, लेकिन मरदम शुमारी मुकम्मल नहीं हो पाई। और मछली मार्केट में मुतबादिल जगह पर मुंतकली में अहम पेशरफ। डीसी लाहौर की सरबराही में मुतल्लिका महकमों का इजलास। मुल्तान रोड पर नई मछली मार्केट में सीवरेज का काम जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म। डीसी लाहौर राफिया हैदर इस बारे में कहती हैं कि 4 किनाल पर मुहित मछली मार्केट में दुकानदारों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मछली मार्केट की मुतबादिल जगह पर मुंतकली में अहम पेशरफ सामने आई है, जो कि डीसी लाहौर राफिया हैदर की जानिब से ये कहा गया कि 4 किनाल पर मुहित मछली मार्केट में दुकानदारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। और डीसी लाहौर की सरबराही में मुतल्लिका महकमों का इजलास हुआ। ये भी कहा गया इस इजलास में कि मुल्तान रोड पर नई मछली मार्केट में सीवरेज का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया जाए। गुलबर्ग की रीक्लासिफिकेशन प्लान में अदारों की कोताही। एलडीए ने गुलबर्ग के बाकी मानदा रिहायशी प्लॉटों को कमर्शियल करने का प्लान बनाया। वासा ने एलडीए को रीक्लासिफिकेशन से कबल सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की हिदायत कर दी है। ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के बिना स्कीम पर मज़ीद नफूस का बोझ डालने से मसाइल पैदा होंगे। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। की रीक्लासिफिकेशन प्लान में मुबैना तौर पर इदारों की कोताही सामने आई है कि एलडीए ने गुलबर्ग के बाकी मानदा रहायशी प्लॉटों को कमर्शियल करने का प्लान बनाया, लेकिन इस दौरान जो गुलबर्ग की सर्विसेज हैं उनकी अपग्रेडेशन पर किसी तरह का कोई भी काम नहीं हो सका। वासा ने एलडीए को रीक्लासिफिकेशन से कबल सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हदायत कर दी है। ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के बिना स्कीम पर मजीद नफूस का बोझ डालने से मसाइल में इजाफा होगा और मौजूदा हालात में गुलबर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इमारतें हैं उनके लिए नाकाफी है। अब ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि गुलबर्ग में मजीद कमर्शियल सरगर्मियां करने से स्मोक में भी इजाफा होगा, क्योंकि वासा प्लान पर अमल दरामद किए बगैर गुलबर्ग में 90% प्लाट कमर्शियल कर दिए गए हैं। वासा की जानिब से गुलबर्ग में नया सीवरेज सिस्टम बिछाने के लिए 4 अरब 76 करोड़ 84 लाख रुपए का जो मंसूबा है वो एलडीए को पेश कर दिया गया है और हदायत की गई है कि रीक्लासिफिकेशन से कबल ये 5.25 अरब रुपए के इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद किया जाए, जिसके बाद गुलबर्ग का सीवरेज सिस्टम 2050 तक के लिए कारआमद होगा। वासा ने इस मेगा प्रोजेक्ट को मास्टर प्लान 2050 में भी शामिल कर लिया है, जिसके मुताबिक मुश्किल डिस्पोजल स्टेशन रिंग रोड के नजदीक वासा की 237 कनाल अराजी पर तमीर किया जाएगा, जो कि 2000 क्यूसिक पानी फेंकने की सलाहियत रखता होगा। इसके अलावा जो वासा का प्लान है, इस मंसूबे के तहत मेन मार्केट, मिनी मार्केट, सेंटर पॉइंट, गालिब मार्केट, फिरदौस मार्केट और शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। महकमा एक्साइज में स्मार्ट कार्ड का इशू फिर सर उठाने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर के लाखों सार्फिन के स्मार्ट कार्ड ना बन सके। गुज़श्ता 1 माह से प्रिंटिंग बंद होने से कार्ड प्रिंट ना हो सके। लाहौर में 85,000 से ज़ायद स्मार्ट कार्ड इल्तवा का शिकार। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सार्फिन के कार्ड लेट हो रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहिल अली से। राहिल, अपडेट कीजिए इस हवाले से। राहिल, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। राहिल से राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर के लाखों सार्फिन के स्मार्ट कार्ड ना बन सके। गुज़िश्ता 1 माह से प्रिंटिंग बंद होने से कार्ड प्रिंट ना हो सके। लाहौर में 85,000 से ज़ायद स्मार्ट कार्ड इल्तवा का शिकार हैं। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, शहर में शगाफज़दा सीवरेज लाइनों की तब्दीली का मामला। मानसून से कबल शगाफज़दा लाइनों की तब्दीली ना हो सकी। सीवरेज लाइनें टूटने के बाद वासा ने नया सीवरेज सिस्टम डालने का ऐलान किया था। एमडी वासा इस बारे में कहते हैं कि मरहलावार सीवरेज लाइनों की तब्दीली का काम करेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइएगा तब्दीली क्यों नहीं हो पा रही? फंड्स की किल्लत है या कोई और वजूहात? अब बुनियादी तौर पर तो पंजाब हुकूमत की जानिब से इन मनसूबा जात के मुकम्मल फंड्स का इजरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये मामला तूल इख्तियार करता जा रहा है। शहर में हालिया होने वाली बारिशों ने प्री मानसून की निवीद तो सुना दी है, मगर इन शिगाफज़दा लाइनों की तब्दीली के ऊपर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। माजी में देखा गया है कि तेज बारिशों के सबब शहर में सीवरेज लाइनें टूटने के बेशुमार वाक़यात रूनुमा हुए, जिसके बाद वासा हुकाम की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि इस मज़कूरा सीवरेज लाइन पर नया सीवरेज सिस्टम डाल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। मौजूदा सूरत हाल में
اقبال ٹاؤن کی سیوریج لائن کی تبدیلی پر بھی واسا حکام کے جو دعوے ہیں وہ صرف بجٹ کی حد تک محدود ہیں۔ اس کے علاوہ مین بولیوارڈ، جوہر ٹاؤن، خیابان فردوسی جو کہ سیوریج لائن 9 مرتبہ شگاف زدہ ہو چکی ہے، اس کی تبدیلی پر کسی بھی طرح کا کوئی پلان ابھی تک نہیں بنایا جا سکا۔ واسا نے شوق سے شوکت خانم چوک تک نیا سیوریج سسٹم ڈالنے کے لیے 75 کروڑ روپے کا تخمینہ تو لگایا تھا، مگر گزشتہ 2 برسوں سے یہ منصوبہ فائلوں میں بند ہے۔ اس کے علاوہ مین بولیوارڈ گلشن راوی کی شگاف زدہ لائن بھی ابھی تک واسا کی توجہ کی منتظر ہے۔ بیکے وال موڑ، مین بولیوارڈ، علامہ اقبال ٹاؤن شپ اور ملحقہ گلیوں میں ابھی سیوریج لائنیں اس سے قبل مانسون میں شگاف زدہ ہو چکی ہیں، لیکن بہت شکریہ زین آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ والٹن روڈ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ بارش کا پانی تاحال سڑک پر موجود ہے۔ پانی جمع ہونے سے والٹن روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ متعلقہ محکموں کی جانب سے تاحال کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ مزید جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ مبین بتائیے گا۔ اسی طرح سے کہ والٹن روڈ کے ایریا میں اور بڑی اہم شاہراہ کنسیڈر کی جاتی ہے، بہت اہم شاہراہ ہے۔ روز کی بنیاد پر یہاں پر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے۔ یہاں پر کاروباری مراکز موجود ہیں، تعلیمی ادارے موجود ہیں، لیکن سڑک کی جو حالت ہے بہت خستہ حال دکھائی دیتی ہے۔ جگہ جگہ پر جو ہے بارش کا پانی کھڑا ہے۔ بارش 2 دن پہلے ہوئی تھی، لیکن ابھی تک جو ہے مختلف جگہوں سے جو ہے سڑک سے پانی صاف نہیں کیا جا سکا۔ نکاسی آپ کا جو سیٹ اپ ہے بالکل خراب ہے۔ سڑک پر جگہ جگہ پر جو ہے گڑھے پر چکے ہیں، جس سے گاڑیوں کو جو آمد و رفت میں بھی ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں پہ علاقہ مکین ہے، یا کاروباری حضرات ہے جو یہاں پر رہتے ہیں، ان کی مارکیٹس یہاں پر، ان کا کہنا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو جگہ بالکل تالاب کا منظر پیش کرنا شروع ہوتا ہے۔ ابھی بھی 2 دن ہو چکے ہیں بارش ہوئی کو، لیکن ابھی بھی جو ہے اگر آپ میرے عقب میں میرا کیمرہ مین بلال آپ کو دکھا سکے تو پانی جو ہے کھڑا ہے مختلف جگہوں پر، اور بہت زیادہ جگہوں پر ہے، متعدد جگہوں پر روڈ میں جو ہے پانی کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی یہاں پہ ایک اسکول بھی موجود ہے، نجی اسکول ہے، جس کے اندر جب بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو بچوں کو جب گزرنے کا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور فیملیز کو آنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے کوئی ایکشن لے گی، اور یہاں پہ جو میونسپل ادارے ہیں وہ حکمت عملی کی ایسی بنائیں گے کہ یہاں پہ سیوریج سسٹم ہے جو بالکل خراب ہے، جس کی وجہ سے پانی ہر دفعہ بارش میں جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا مسئلہ حل کیا جائے گا۔ اور بارش کے بعد جو ہے پانی کھڑا ہونے کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ اس کو ٹھیک کریں گے، تاکہ یہاں کا جو علاقہ مکی ہیں وہ سکون کر سکیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں نعمان کی لوہاری گیٹ کے علاقے میں کھلی کچہری۔ بجلی صارفین کی بڑی تعداد شکایت لے کر کھلی کچہری پہنچی۔ حافظ میاں محمد نعمان نے صارفین کی شکایات سن کر فوری ازالے کی ہدایت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے فہد امین سے۔ جی فہد، بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، بجلی صارفین کے مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو کی جانب سے جو ہے وہ مختلف سرکلز میں کھلی کچہریوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج فرسٹ سرکل میں جو ہے وہ لوہاری گیٹ کے علاقہ میں آج کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں صارفین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آئی اور انہوں نے اپنی شکایات درج کروائیں۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان نے ان تمام صارفین کی شکایات سنی، اور لیسکو افسران بھی جو ہے وہ اس کھلی کچہری میں موجود تھے۔ انہیں جو ہے وہ فوری طور پر ان کی شکایات کا ازالہ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ زیادہ تر جو شکایات یہاں پر دیکھنے میں آئی ہیں ان میں میٹرز جو ہے وہ تبدیل نہ ہونے، خراب میٹرز تبدیل نہ ہونے اور نئے کنیکشن نہ لگنے کی شکایات ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ اچھا سر، ہر سرکل میں کچہری لگ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ عوامی مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیسے ان کا جو ہے وہ ازالہ ممکن ہوگا؟ جی، زیادہ مشکلات وہ ہیں کہ جو پچھلے سال پرچیز نہ ہونے کی وجہ سے جو سامان کی کمی تھی، آپ دیکھیں کہ میٹر کی شکایات ہیں کہ جو خراب میٹر ہیں وہ تبدیل نہیں ہو رہے، نئے میٹر لگ نہیں رہے تھے۔ ابھی تقریباً 60,000 میٹر جو ہے وہ لیسکو کو موصول ہو گیا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اوپن کچہریاں لگانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ان کو انصاف مہیا کیا جائے، اور خود پریکٹیکلی لیسکو لوگوں کے پاس چل کر جائے کہ جناب اگر آپ کو کوئی شکایت ہے، کمپلینٹ ہے، ہمارے کسی عملے کے رویے سے، کسی آفیسر سے شکایت ہے، آپ وہ بیان کریں۔ ان انٹرپٹیڈ بجلی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت پاکستان کا ویژن ہے، محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کا ویژن ہے، اور میاں محمد نواز شریف جو قائد پاکستان مسلم لیگ نون ہے، یہ ان کا ویژن ہے کہ لوگوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے بجلی فراہم کی جائے۔ اور میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور کیے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے اندر لوگوں کے گھروں میں چراغ اور روشنیاں پیدا کی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو عمل ہے، یہ ہم دیکھیں کہ 18-19 کچہریاں ہم کر چکے ہیں، اور اس کا بڑا ایک رزلٹ آ رہا ہے۔ پورے لاہور کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، اور لیسکو کے افسران بھی اور لیسکو کا جو تمہارا جو سٹاف ہے
वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत के अंदर इस वक्त सरगर्म है। और ये एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि लोगों की जो शिकायत का जो इजाला है वो बुनियाद है इस महकमे की। अगर वो शिकायत का इजाला नहीं होगा तो फिर इस महकमे का कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल, आपने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां मोहम्मद नुमान की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक जो है वो बिजली सार्फिन को रिलीफ जो है वो उनके घरों की दहलीज तक देने के लिए ये खुली कचहरियाँ लगाई जा रही हैं और ये जो है वो हर सर्कल में लगाई जा रही है और इससे लोगों के मसाइल जो है वो हल होते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया फहद आपका। रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहमी जारी है। लाहौर में अब तक 22,78,718 बैग तकसीम किए जा चुके। लाहौर में 43 सेंटर्स पर मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। इमरान से राबता मुनक़ता है, राबता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं। रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से आपको बताएं कि लाहौर में अब तक 22,78,718 बैग्स तकसीम हो चुके। लाहौर में 43 सेंटर्स पर मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। मुफ्त आटे की फराहमी के हवाले से ये मनाज़र भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। लाइनें लगाकर लोगों को आटा फराहम किया जा रहा है। आपको बताएं कि लाहौर में अब तक 22,78,718 बैग्स तकसीम हो चुके हैं। नौसरबाजों ने हुकूमत की सहूलत मुफ्त आटे का भी गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुफ्त मिलने वाला आटा तंदूर मालिकान को बेचने के वाक़यात सामने आने लगे। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर इंतजामिया हरकत में आ गई। रायवंड और गुजरपुरा में 2 मुकदमे दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर दिया गया। रायवंड में एक मुलजिम आटे के थैलों से भरा रिक्शा लेकर ही फरार हो गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मुफ्त मिलने वाले आटे की मिली बगल से तंदूर मालकान को जो है वो बेचने का वाक़या जो है वो सामने आ गया है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर इंतजामिया भी अब हरकत में आ गई है। रायवंड और गुजरपुरा में 2 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। 2 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रायवंड में एक मुलजिम आटे के थैले से बड़ा रिक्शा लेकर जो है वो फरार हो गया। गुजरपुरा में एक शनाख्ती कार्ड पर इस्मान नामी शख्स से टोकन हासिल कर चुका है। आटा खरीदने वाले तंदूर मालकान के खिलाफ भी जो है पुलिस से कहना है कार्रवाई की जाएगी। 2 जो मुलजिम गिरफ्तार हैं, पुलिस से कहना है कि इनसे तफ्तीश की जा रही है। इनके जो दिगर साथी हैं इनसे तफ्तीश की जाएगी और इनके जो दिगर साथी हैं उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जो है इनके दिगर साथियों को गिरफ्तार करके इसी मुकदमे में नामजद जो है वो करके इनका चालान जो है वो अदालत करके तैयार करके अदालत से भिजवाया जाएगा। जी शुक्रिया मुदस्सिर। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का फ्री आटा सेंटर रीगल चौक का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने फ्री आटा फराहमी सेंटर पर सफाई, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर कहते हैं मजमूई तौर पर अब तक 49,30,872 फ्री आटा बैग्स तकसीम हो चुके हैं। अहम दौरा है ये कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से। दौरे के ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि फ्री आटा फराहमी सेंटर पर सफाई, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया गया है कमिश्नर लाहौर की जानिब से। जबकि कमिश्नर लाहौर ये भी कहते हैं कि मजमूई तौर पर अब तक 49,30,872 फ्री आटा बैग्स तकसीम हो चुके। CCPO लाहौर बिलाल सद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। लाहौर पुलिस के मजीद 22 ASIs 52 कांस्टेबल्स को तरक्की दे दी गई, जबकि ASIs की तरक्की के 35 कांस्टेबल्स की तरक्की के 90 केसेस ज़ेर गौर आए। CCPO लाहौर बिलाल सद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। इस इजलास का अहवाल जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। है वो तरक्की का जो सिलसिला है वो जारी है। आज भी जो है वो मजीद 22 ASI और 52 कांस्टेबल को अगले अहदे पर तरक्कियाँ दी की हैं। और बिलाल सद्दीक कमियाना की ज़ेर प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ और इजलास में 22 ASI को 2 इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्कियाँ दी। इसके अलावा 22 कांस्टेबल को हार्ड कांस्टेबल के अहदे पर तरक्कियों के जो अहकामात हैं वो भी जारी किए गए हैं। प्रमोशन बोर्ड में ASI की तरक्कियों के 35 कांस्टेबल के जो तरक्कियों के 90 केसेस जो है वो ज़ेर गौर आए और क्लियर करार दिए गए। 22 ASI और 52 कांस्टेबल को अगले अहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। प्रमोशन पाने वालों में तरक्की पाने वालों में 4 लेडी कांस्टेबल शामिल हैं, जिसमें आयशा, अरशद, रजिया, हनीफ, राबिया महमूद और ताहर मुश्ताक शामिल हैं। तरक्की पाने वालों में ऑपरेशन। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमें आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया।
इजलास में इंतखाबी मुहिम समेत दीगर मामलात ज़ेर बहस आएंगे। लियाकत अली सीसी पर बात करेंगे। लियाकत बताइएगा। लियाकत से राब्ता मुनक़ता हुआ है। अहम इजलास के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। पंजाब में इंतखाबात के फ़ैसले के बाद तहरीक इंसाफ मुतहरिक हो गई है और कल अब इजलास तलब कर लिया गया है। मुशावरती इजलास के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। इजलास में इंतखाबी मुहिम समेत दीगर मामलात ज़ेर बहस आएंगे। अहम इजलास है PTI का। उस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया है। आज के आने वाले फ़ैसले के बाद सियासी गर्मा गर्मी और सियासी जो लोग हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं और अब PTI की जानिब से कल अहम इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला के मुशीर बराए खेल वहाब रियाज की सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मुलाकात। हॉकी की बहाली के लिए तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वहाब रियाज का कहना था कि कौमी खेल की बहाली अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। वज़ीर आला पंजाब के मशीर बराए खेल वहाब रियाज की सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मुलाकात हुई है। मुलाकात में हॉकी की बहाली के लिए तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इस मौका पर वहाब रियाज का कहना था स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब मुल्क में हॉकी की तरक्की और बहाली के लिए हॉकी फेडरेशन के साथ काम करेगा। कौमी खेल की बहाली अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब में 20 से ज़ायद हॉकी टर्फ ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। प्लेयर्स डेवलपमेंट के लिए निजी शोबे के ताउन से काम करेंगे। हॉकी की खिलाड़ियों को हर मुमकिन सपोर्ट फराहम की जाएगी। रमजान स्पोर्ट्स गेम्स में हॉकी इवेंट के लिए 40 लाख से ज़ायद के कैश प्राइज रखे गए हैं। मशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की हॉकी के लिए काविशें काबिल सताइश हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन का कहना था स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के साथ मिलकर हॉकी के मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे। हैदर हुसैन का ये भी कहना था। जी सर, शुक्रिया आपका। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास पार्टी के आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। PTI सेंट्रल पंजाब के तमाम सदूर को इंतखाबात की तैयारियां करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। अहम इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास पार्टी के आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तबादला ख्याल। PTI सेंट्रल पंजाब के तमाम सदूर को इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर का डिविजनल SPs के साथ इजलास। DIG ऑपरेशंस का SPs से मुख्तलिफ वारदातों बारे इस्तफसार। SPs की अफजाल अहमद कौसर को अमन व अमान बारे ब्रीफिंग। इजलास में सूबाई दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। सहरी और इफ्तारी के औकात कार में पेट्रोलिंग में इजाफा करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। अहम इजलास हुआ है अमन व अमान के हवाले से। इजलास का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। फेडरेशन के साथ जो है वो अहम इजलास हुआ है। इजलास में जो है दीगर जो एसपी थे वो भी मौजूद थे। DG ऑपरेशन एसपी से मुख्तलिफ जो है वारदातों के बारे में भी इस्तफसार किया है और एसपी DG अफजाल कौसर ने सिक्योरिटी की सूरत हाल का पर भी मुख्तलिफ हदायत जारी की हैं। सारी कार में पेट्रोलिंग मजीद बढ़ाने की भी DG अफजाल कौसर ने हदायत जारी की है। DG अफजाल कौसर का कहना है कि 15 पर मसूल होने वाली कॉल पर फौरी एक्शन लिया जाए और तहकीर जो है वो हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DG ऑपरेशन ने कहा कि क्राइम को ग्राफ पर नीचे लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम जो है वो किए जाएंगे और जुर्म के खात्मे के लिए तैयारी और आदि मुजरमान की गिरफ्तारी जो है वो लाजमी की जाए। खासतौर पर जो SHO नाहल हैं काम नहीं करते, उनका कहना था कि उनके खिलाफ जो है वो अब कानूनी महकमाना कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और DG ऑपरेशन ने मजीद कहा कि अफसर और पंजाब आर्ट गैलरी में इस्लामिक कैलीग्राफी की नुमाइश में नौजवान मुसव्विरों के फ़न पारे रखे गए। नुमाइश का एहतमाम वेस्को PK और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट लैंग्वेज एंड कल्चर के इश्तराक से किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, वेस्को PK और प्लाग के इश्तराक से कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज इस्लामी ख़ताती नुमाइश का इनेकाद किया गया था, जिसमें आर्टिस्टों ने एक बड़ी तादाद में शिरकत की और यहाँ पर जो है खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं वो आवेज़ा की गई हैं और हर पेंटिंग का जो है वो कोई ना कोई मकसद है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अफजल जावेद, CEO वेस्को। इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा इस नुमाइश का क्या मकसद था? जी, ये नुमाइश का मकसद है जो हमारे पाकिस्तान के यंग टैलेंट आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट करना और एक रमज़ान मुबारक और
اس کے حوالے سے میں نے اسلامی کیلیگرافی کی ایگزیبیشن لگائی ہے، اور ہمارے پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے جو چھپا ہوا ہے کہ ان کو باہر لانے کے لیے یہ ایگزیبیشنز کی جاتی ہیں، اور میں مختلف جگہ پہ ایگزیبیشنز کرتا رہتا ہوں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. اور میں سب کو میسیج دینا چاہوں گا جو آرگنائزر ہیں کہ ینگ ٹیلنٹ آرٹسٹ کو سپورٹ کریں، کیونکہ ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ اس سے آگے آئے گا سپورٹ کرنے سے. ہاں جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے جو ہے یہ نمائش لگائی گئی ہے، اور اس نمائش کا یہی مقصد ہے کہ نئے ٹیلنٹ جو ہے ان کو پروموٹ کیا جائے. جی شکریہ آپ کا سامیہ، فی الوقت اتنا ہی.